वर्किंग एज अ फ्रीलांसर, मैं अपनी खुद की मैनेजमेंट कंपनी भी चला रहा था। तो द थिंग वाज कि ये सारी चीजें हिडन थी, मतलब नन ऑफ द पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन नोस कि मैं ये सारी चीजें साइड बाय की वो प्रिटेंड कर रहा था कि बहुत स्टूडियस है, और वो मेरे से छोटा है। मतलब आई वेंट देयर आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, वो ग्रेजुएशन के बाद वहां पे आया कमिंग, एंड लाइकवाइज आई स्टार्टेड गैदरिंग माय टीम, and then slowly and steadily we came across. I witnessed that movie Band Baja Barat. You are tolerating all people's behavior at your workplace, or that is hampering your personal life. So you should not take your 9 to 5 till your True thing. And in fact, like जैसा अभी आपने mention भी किया कि usually लोग corporate में, मतलब I'm not saying for the entire audience, but majority of the audience I came across, the people I was working with, सबका मेन एजेंडा है कि घर पे पैसे लेकर के जाने, and especially I came across such people, those who have been struggling a lot. Right. So the source of contact is नहीं. Okay. Sister तो बाद में आती है, सबसे पहले मम्मा. और चलो सुना वो बात अलग है, अगर टाइम शीट गलती से भी छूट गई तो वो मैनेजर को सीसी में रख करके कंप्लाइंस का मेल आ जाता था, और मैनेजर मेरी अलग से लंका लगाता था कि भाई क्या है तेरा, तू रोज रोज कहते हैं जब दिल किसी सपने को चुन लेता है तो कहानी खुद ब खुद खूबसूरत बन जाती है। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने अपने सपने को चुना और 9 to 5 की कंफर्ट एंड सेफ जॉब छोड़कर, एंड ही इज लिविंग हिज लाइफ विद पर्पस, एंड ही इज ट्रूली an inspiration for all of us, and he is playing a role of an anchor, an entrepreneur, and he's an inspiration for all of us. So let us welcome Tapish Singhal on our show. Thank you Cups so and much. Conversation. So warm welcome. Thank to you so much, Tapish. Megha. It's a pleasure for me being on your show, and a very warm welcome for your audience as well. Yes. This is for the very first time I'm coming to any podcast, and yeah, it's a dream come true for me. Okay. So yeah. So how are you feeling today? So I am feeling a bit nervous because as I told you that this is for the very first time मैं कोई podcast shoot कर रहा हूँ, और हाँ I'm excited too as well क्योंकि it was one of my dreams, so one of my checklist got ticked today itself. Thank you so much. Great. Megha. And yeah, I'm so glad that I have become that medium for you to get that done. So I would like to start with just one point. When I invited you for this show, so what was that one thing in your mind that you said yes? To be very honest, like though podcast is first, but I have done a lot of interviews, so I thought like I was completely like whether it's gonna be a scripted thing और क्या होगा कैसे होगा और audience को मैं क्या message deliver करूंगा, because right now I am 25 और next year I gonna be turning 26, तो I feel as if कि मेरी लाइफ में अभी बहुत कुछ है जो मेरे को अचीव करना है, और इतने अर्ली स्टेज पे मेरे को ऑडियंस को डिलीवर करना है और अपनी जर्नी के बारे में बताना है। तो आई वाज बिट नर्वस कि भाई मैं कैसे लोगों को इंस्पायर कर पाऊंगा, तो आई ट्राई माय लेवल आर्ट। तो हाँ, मैं थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन थी कि मतलब मैं नर्वस भी था और मेरे को लग भी रहा था कि क्या मेरे को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो बट आई वाज लाइक कि चलो ठीक है शुरू करते हैं एटलीस्ट। राइट, इट्स अ ग्रेट। हाँ, तो इट वाज अ मतलब इट इज अ किक स्टार्ट फॉर मी, तो या पहला पॉडकास्ट, चीयर्स टू मेगा। Okay, thank you. So yeah, I just forgot to mention that he is our youngest entrepreneur, and you know it is really an achievement that he is living his life at very early age, and I'm super excited for our conversation. And then yes, stay tuned. Thank you. So Tapish, just to start with our conversation, so पहले आप ये बताइए हमारी audience को, while just being in the job, right? So what was that point that made you to leave that job and fulfill your purpose or live your dream life which you are living now? So if you are particularly asking me for a point, Yeah. so every day it was a point because the team I was working for, see, I won't mention the names. Of course. Because corporate world is like everyone is aware of. So every day was like a bit hectic for me. I was like, what the hell I'm doing? मतलब मेरे को एक अंदर से स्पार्क नहीं था कि मैं जाता तो था, बट आई वॉज ओनली गोइंग ऑफिस जस्ट बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स की चलो ठीक है उनके साथ मैं टाइम काट लूंगा। और इस टाइम पे तो भाई जब व्हेन यू आर अर्निंग पर्सन फॉर द फैमिली, तो आपको लगता है कि भाई घर में पैसा आए कैसे भी आए, अब चाहे वो आप खुशी से जाओ या फिर कैसे भी जाओ, लेकिन आपको जाना है, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो या
पॉलिटिक्स भी थी मेरे साथ, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स चल रही थी, एंड आई वाज लाइक कि आई हैव नेवर इमेजिन्ड फॉर सच अ लाइफ, बिकॉज मेरा स्टार्टिंग से बहुत एनलाइटेड वो रही है जर्नी कि मेरे को सारी चीजें बहुत फैसिनेटिंग वे में चाहिए थी, क्योंकि आई वाज दी, मतलब वी आर थ्री सिबलिंग्स एग्जैक्टली, और मेरी दोनों बहनें बहुत बड़ी हैं, और उन्होंने मम्मा ने, पापा ने, हर किसी ने जो मेरी अपब्रिंगिंग की है वो इतने लाइक पैम्परिंग वे में करी है ना, कि मेरी लाइफ हमेशा से एक मतलब एक स्टोरी से कम नहीं रही थी। आप कि छोटे रहे? मैं बहुत छोटा हूँ, मेरी बड़ी सिस्टर और मेरे में आई गेस 14 इयर्स का डिफरेंस है, और मेरी जो दूसरी बड़ी सिस्टर है, मतलब जो बड़ी वाली से छोटी है, उसमें और मेरे में 12 साल का डिफरेंस है आई गेस। आई वाज ब्रॉट अप लाइक एवरी डे इट वाज अ, मतलब नो वंडर कि आपको पूरा प्यार मिला होगा। एग्जैक्टली, मतलब मेरे मुंह से किसी चीज का निकलना और वो पूरा होना। एंड देन व्हेन देयर वर लॉट ऑफ लाइक विल डिस्कस अबाउट दैट एज वेल इन योर पॉडकास्ट, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, बट स्टिल मेरे पेरेंट्स ने, मेरी बहनों ने ये चीज को एश्योर करके रखा कि ठीक है, इकलौता भाई है और इसकी अपब्रिंगिंग हम बेस्ट टू बेस्ट वे में करेंगे। तो एवरी डे वाज लाइक मेरे मुंह से जो निकला वो पूरा होना ही होना था। और yeah so you were living life as a king, right? Then exactly, and then going to corporate and listening to everyone, जो बच्चा कभी किसी की सुनता नहीं था बल्कि उल्टा अपनी सुनाता था सबको, अभी suddenly the things got changed and everyone is coming on to, और आपको corporate का अच्छे से पता है कि our managers or our team leads and even though the seniors whom I was working with, everyone was like oh god, तो मेरे को लगता था कि ठीक है, जब तक चल रहा है, लेकिन one fine day I realized कि भाई अब तो नहीं हो पाएगा। And what was that inner calling actually? और वो जब एकदम ब्रेक डाउन वाला मोमेंट्स हो गया आपके लिए? तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, हमारी द ऑर्गेनाइजेशन विच आई वाज वर्किंग फॉर, आई वोंट ओपन अप द नेम, सो द ऑर्गेनाइजेशन विच आई वाज वर्किंग फॉर, उसमें बड़ा कंप्लायंस के इश्यूज रहते थे, मतलब एवरी डे लाइक, एंड व्हेन दिस पॉडकास्ट गोना बी गोइंग लाइव, जो लोग मेरे को सुन रहे हैं वो समझ जाएंगे कि इट्स अमंग्स व्हिच ऑफ दोस ऑर्गेनाइजेशन आई एम टॉकिंग अबाउट। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक टाइम शीट का रहता है सिस्टम की, इवन दो लाइक व्हेन वी मेट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द कैब आई मेंशन कि हमारे यहाँ वो, और इनफैक्ट आई वाज लिसनिंग टू वन ऑफ माय फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन, तो अगेन आई वोंट से द नेम आउट, तो हमें ना टाइम शीट रोज शाम को भरनी होती है, और उसमें हमें दिखाना होता है, बताना होता है कि हमने इतने घंटे इस चीज के लिए चार्ज किया, इतने घंटे इस चीज के लिए चार्ज किया। अच्छा, वो दैट वाज योर डेली टास्क? Exactly. और the thing is कि like when you are during the season, when you are working really very hard, और हमारा स्ट्रेच 15 घंटे का होता था ड्यूरिंग द सीजन, तो आई वाज लाइक व्हाट द हेल आई एम डूइंग, और इतना काम करने के बाद भी फिर सुनना पड़ता था। और चलो सुना वो बात अलग है, अगर टाइम शीट गलती से भी छूट गई तो वो मैनेजर को सीसी में रख करके कंप्लायंस का मेल आ जाता था, और मैनेजर मेरी अलग से लंका लगाता था कि भाई क्या है तेरा, तू रोज टाइम शीट मिस कर रहा है, इट्स अ वेरी सीरियस कंसर्न, तेरी रेटिंग गिरा देंगे, तेरे को प्रमोट नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ठीक है। देन आई स्टार्टेड लाइक इन फ्रंट, आपकी मतलब फ्रंट में ये सारी, हाँ एग्जैक्टली या मतलब दिस वाज अ रूल व्हिच वाज सपोज्ड टू बी फॉलोड बाय एवरीवन, सो एज मी, बट लाइक आई वाज लाइक कि मैंने कभी अपने स्कूल टाइम में होमवर्क नहीं लिखा, और यहाँ क्या मेरे को टाइम शीट भरनी पड़ रही है, तो आई यूज्ड टू जॉट डाउन ईच एंड एवरी पॉइंट कि हाँ मैंने इतना, मतलब इतने आवर्स इस पर्टिकुलर एंटिटी को चार्ज किए, मैंने इस काम के लिए इतना चार्ज किया, तो इट वाज क्वाइट बोरिंग फॉर मी एंड आई वाज नेवर मेंट फॉर ऑल दीस वर्क। तो मैंने तब एक, मेरे को लगा कि भाई ठीक है, जब तक हो रहा है करो, और जिस दिन अगर पानी सर के ऊपर से गया उस दिन मैं देख लूंगा सबको। तो वन फाइन डे वो दिन आया जब चीजें इतनी सारी बढ़ गई, बढ़ते एंड एट लास्ट फिर मैंने पेपर ड्रॉप किए, मैंने रिजाइन कर दिया, आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माय ओन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, सो या हियर आई एम। So did you serve your notice period or just? Yeah, I have completed my notice period in the month of August only. Oh, okay. And even though I was working for the working as a freelancer, मैं अपनी खुद की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी चला रहा था, तो द थिंग वाज कि ये सारी चीजें हिडन थी, मतलब नन ऑफ द पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन नोज कि मैं ये सारी चीजें साइड बाय साइड कर रहा हूँ। रीजन बीइंग वी हैव सम रूल्स एंड रेगुलेशन दैट वी कैन गो फॉर हैविंग अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम व्हाइल वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, सो या दैट वाज वन ऑफ द थिंग व्हिच मेड मी फील लाइक कि अगर मैं जॉब में ही अटका रह गया तो 30,000, 40,000, 50,000 में जो मेरे को मेरे अपने ड्रीम्स हैं, जो मेरे डिजायर्स हैं, वो मैं फॉर श्योरली कॉर्पोरेट लाइफ से इतनी जल्दी तो पूरे नहीं कर पाऊंगा। तो देन आई थॉट ऑफ कि चलो यहाँ से पूरी तरीके से निकलते हैं, और जिस चीज में हम ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उसको और आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो या गुड, या इट वाज, आई थिंक
9 to 5 का what I consider is, of course, it is a good way, good platform to start when people don't have any support, kind of, financial system if they do not have, and if they really want to do something on their own. So it's good to start, but of course, not to stuck to that point कि जहाँ पर आप सब कुछ tolerate कर रहे हो. You are tolerating all people's behavior at your workplace, or that is hampering your personal life. So you should not take your 9 to 5 till your ट्रू थिंग एंड Personal इनफैक्ट life लाइक है, जैसा तो- अभी आपने मेंशन भी किया कि यूजुअली लोग कॉर्पोरेट में, मतलब आई एम नॉट सेइंग फॉर द एंटायर ऑडियंस बट मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस आई केम अक्रॉस द पीपल आई वाज वर्किंग विद, सबका मेन एजेंडा है कि घर पे पैसे लेकर के जाने, एंड स्पेशली आई केम अक्रॉस सच पीपल्स दोस हु हैव बीन स्ट्रगलिंग अ लॉट Right. with the financial crisis. Everyone has some or the other problem. Everyone doesn't come up so openly कि भाई मेरे घर में ये issue है या likewise. तो at last अगर हर कोई tolerate कर रहा है तो the main agenda is money. right. और nowadays I don't know what's happening to all of us कि हमने पैसे को इतनी priority दे दी है कि we have forget living, like Yeah. because even though I'm following you on Instagram, I Oh. used to see your quotes and everything. Most of the time when I'm feeling very much low, I used to listen to your whatever the post you used to drop Oh, over the you do? Instagram. Yeah, I do. Wow. I feel a bit motivated. ठीक है भाई, जिंदगी में it's not all about पैसा पैसा पैसा, it's all about कि आपने लाइफ में क्या अचीव किया, और एट दी एंड जब आप रात को सोने जा रहे हो तो आप जब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर रहे हो तो आपके चेहरे पर वो सुकून है कि आपने आज का दिन वैल्यूएबल, लाइक जो Yeah. आपने प्लान किया था, यू हैव अचीव्ड ऑल दोस थिंग्स एज पर दैट और नॉट. Right. तो आई फील दिस थिंग कि आप रात को सो रहे हो तो आपके चेहरे पर एक सुकून होना चाहिए कि आज का दिन मेरा एक अच्छा गया. एंड व्हेन आई वाज वर्किंग इन कॉर्पोरेट, फॉर श्योरली टेंशन के साथ, इनफैक्ट ऐसा भी हुआ है कई बार मैं रात को 3 बजे उठाऊं, मेरे को याद आ रहा है ओ शिट मैंने टाइम शीट नहीं भरी है, मैं जल्दी से भर दूं, क्योंकि अगर कंप्लाइंस आ गया तो मैनेजर फिर मेरे फिर से मतलब वो सारी चीजें होंगी. हाँ, ना जो टास्क हमने ऑलरेडी कर भी दिए होते हैं, बट ये And it happened multiple times. Like I woke up something around 2:30 or 3 at night, and like I got scared. I'm recalling कि मैंने time sheet भरी थी कि नहीं भरी थी. Then I'm logging in back. I'm checking my time sheet. कि Morning. मेरे को ये डर रहता था कि अगर compliance issue आ गया फिर अगले दिन मैनेजर फिर तांडव करेगा मेरी जान पे. तो मैंने कहा भाई अब तो नहीं हो पाएगा. तो Okay. Acha, okay. So before quitting your job, so, I mean, you were parallelly doing your business, right? Yeah. Matlab, you started doing it, Yeah. and your manager would know about it. Like, did you disclose it? They know that I was a professional anchor. I have been performing in more than 500 plus shows till that time. But they were not that very much aware about कि still I'm continuing Yeah. with that same profession. They were like कि I would have done all these things in past before joining the corporate. So yeah. Because I mean, the reason to ask, sometimes we get to meet people जो जानते हैं कि इसका ये एक पैशन है, उसमें वो they support you, like they will of course motivate you in some or the other way, considering the fact it does not matter वो आपके मैनेजर है, आपके कलीग है, कोई भी है, बट आप because you are sharing your day with them, तो I think आपका कोई ना कोई वर्क प्लेस पे एक फ्रेंड रहता ही है जिससे आप शेयर करते हो अपनी चीजें. तो आपके वर्क प्लेस पे कोई एक ऐसा फ्रेंड था जिसको आपकी सारी स्टोरीज पता होती थी? एक नहीं बहुत, Personal और एक professional. नहीं बहुत. मतलब लाइक मैं बताता हूँ, मेरी ज्वाइनिंग जो हुई थी वो हैदराबाद हुई थी. तो आई वाज देयर इन हैदराबाद फॉर 6 months. Later on I just got relocated back to Gurgaon, reason being my parents. So we'll come to that point as well. Okay. तो मेरे हैदराबाद में, अच्छा I'll tell you about हैदराबाद people, they are super sweet. और स्पेशली नॉर्थ इंडियन से तो बहुत ही ज्यादा सुपर I स्वीट. can imagine. They are quiet, they are calm, they are very jolly sort of people. They are like, they take their life in a very happening manner. And North Indians का आपको पता है कि भाई हम कितने aggressive होते हैं, और मतलब रूल्स तोड़ने में, हर चीज में काफी it's like, sweet हाँ, वो हाँ, लोग तो होते हैं. but I'm not, sorry audience, I'm not considering everyone, I'm talking about me itself. Right. So please don't mind, and none of you are supposed to get offended with this. But हाँ, आपको पता है कि North Indians are like, हाँ देख लेंगे जो होगा. मतलब देखा काफी जाएगा. chill mind है, Chill, मतलब हाँ, they do not think, exactly. of course friendly है, over friendly we become, but हाँ, like over sweetness थोड़ा कम आ जाता है कभी. Exactly. और फिर नॉर्थ इंडियंस और स्पेशली व्हेन यू आर फ्रॉम दिल्ली, हाँ. तो हमारी जुबान पे तो गाली अलग से ही आती है. तो मेरा फर्स्ट डे था इंडक्शन का, तो हमारी टीम बनाई गई थी 4 की, और हम रेंडमली बैठे थे 4 के ग्रुप में. तो आई मेट विद 2 people. सो
everyone was sitting like we were just involved in the team activity which was like initiated from the HRNs just for the sake of introducing each of us from everyone. Matlab, the thing was like it was an interactive session. So what we were supposed to do is we were supposed to like introduce ourselves to others and understand like what different personality we're going to be working with in the upcoming future. Okay. So this was the scenario. So we were sitting around a round table. Likewise, there were 4 tables. So total there were 4 teams. Okay. So everyone, the table I was sitting means the round table where I was sitting. So everyone was sitting, and mostly people right there by was from either from the south or from the Telangana itself, right? From the Hyderabad Being in itself. Hyderabad. Yeah. Okay. So I was sitting at very ease. Like, abhi to just for the sake of podcast, I am sitting like this. But even though understanding that this was my first job, I'm there at the induction. So I was sitting at very ease. Like literally, मेरा ये था बैठने का तरीका बहुत कैजुअल था. तो एवरीवन वाज लुकिंग एट मी कि यार ये क्या बन रहा है, कैसे बैठा हुआ है. चलो फाइन. उसके बाद हुआ क्या कि इंडक्शन स्टार्ट हुआ और फिर बीच में हमें गैप्स भी मिले. तो बीच में हम वी वेंट फॉर द लंच और उसमें तो मैं बहुत जोर से हंस रहा था और मेरे मुंह से 1-2 बढ़िया बढ़िया शब्द निकल गए थे. एवरीवन वाज लुकिंग एट मी लाइक भाई क्या बोल रहा है, तो ये कहाँ से आ गया. देन एवरीवन वाज लाइक भाई कहाँ से, मतलब Were that a mixed crowd था, north और south का, या फिर हाँ मतलब there were only I guess 3 North Indians and a few were from the east side and mostly were the South Indians only. So अच्छा, Hyderabad में there is one thing good that the people right there by their native language is Telugu but they know Hindi very well. हाँ, right. तो अच्छा, उन लोगों के साथ एक ये भी इशू है कि वो जब आपस में बात करेंगे तो दिल प्रेफर तेलुगु. और हम लोगों से कि जब दे नोज दैट कि इनको नहीं समझ में आएगी तो इधर व्हेन दे गोना बी मेकिंग फन ऑफ अस सो दे विल स्पीक इन तेलुगु बिकॉज़ दे नो कि इंग्लिश हमें आती है, हिंदी हमें आती है. तो ठीक है, तो बात करते थे. दे वर टॉकिंग समथिंग अबाउट मी इन तेलुगु ओनली और मेरे को क्लियरली समझ में आ रहा था कि बात मेरे बारे में ही कर रहे हैं. बट मैंने कहा ठीक है, while looking at their expression, हाँ वो क्लियर पता लग जाता है. और फिर अपनी हरकतों के बारे में भी तो हमें पता था कि हम किस तरीके के इंसान हैं और क्या कैसी चीज है. ठीक है, फाइन. फिर उन लोगों ने मेरे से पूछा कि तुम कहाँ से हो. मैंने कहा भाई मैं दिल्ली से हूँ. तो वो समझ गए कि दिल्ली से है और इसका ये बिहेवियर जो है वो ऑब्वियस इनफ है. देन आफ्टर द इंडक्शन हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई. ट्रेनिंग में मेरे को नए फ्रेंड्स मिले क्योंकि जिस टेबल पे मैं बैठा था आई डिडंट फाइंड एनी ऑफ दोज लाइक माइंडेड. मतलब आई वाज लाइक कि मेरी वाइब्स मैच नहीं कर रही और मैं इन लोगों के साथ क्या मजा करूंगा. देन देयर वाज अ पर्सन, I'll speak out the name, रोशन. वो रोशन was sitting right in front row और रोशन बहुत स्टूडियस तो नहीं कहूंगा कि वो स्टूडियस है, सॉरी रोशन अगर तू ये पॉडकास्ट देखेगा तो स्टूडियस तो बिल्कुल नहीं है. बट हाँ द थिंग वाज लाइक कि वो प्रिटेंड कर रहा था कि बहुत स्टूडियस है और वो मेरे से छोटा है. मतलब आई वेंट देयर आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन और वो ग्रेजुएशन के बाद वहां पे आया. तो बहुत स्टूडियस होने का प्रिटेंड कर रहा था. मेरे मुंह से कुछ भी निकलता वो बंदा समझ जाता कि क्या बोल रहा है और वो तुरंत मेरी तरफ पीछे देखता और मैंने कहा ये बंदा मेरे से कनेक्ट कर रहा है, मतलब इसके साथ वाइब्स मैच हो सकती हैं. मतलब थोड़े शाय रहते हैं बट वो नॉटी होते हैं. हाँ, वो नॉटी है, वो इनफैक्ट आई से वो हरामखोर है बट ही वाज प्रिटेंडिंग एज इफ कि ठीक है मैं स्टूडियस बन के दिखाऊंगा सबके सामने. तो हमारी एक हमारा आई फॉर डिटेलिंग एक वो था, मतलब इट वाज द पार्ट ऑफ करिकुलम ड्यूरिंग द ट्रेनिंग. तो एक there was a lady, I won't name her. तो she came as to train us. तो वो ऐसी बातें करी थी, मतलब लिटरली उनकी बातें बहुत ज्यादा डबल मीनिंग वाली थी. एंड वो कुछ बोलती थी मेरी हंसी यहाँ पे निकलती थी, रोशन मेरी तरफ देखता था. मैंने कहा ये समझ रहा है. तो फिर देन मेरी उससे फ्रेंडशिप हुई. फिर मैं उसके ग्रुप से मिला और धीरे धीरे हमारा पूरा ग्रुप बना. फिर देन आई इंट्रोड्यूस देम कि हाँ भाई मैं ऐसे प्रोफेशनल एंकर हूँ, मैं परफॉर्म करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ. देन एवरीवन वाज लाइक कि तू कहाँ फंस गया. बट मैंने कहा यार वो चीज इतना मतलब रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं दे रही मेरे को और मेरा ये बस एक स्टार्टिंग है. तो आई रियली वांट टू गो इन द एंकरिंग फील्ड एंड इवन दो I just want to make my event management company more bigger. And though we are serving pan India, but इतने often हम बाहर के नहीं करते जितने हम लोकल के करते हैं events. तो या मैंने बताया बट दे वर लाइक वेरी सपोर्टिव, बहुत सपोर्ट करते थे. एंड यू आस्क्ड कि आपके मैनेजर्स और आपके सीनियर्स, तो भाई वो तो
अगर उनको मैंने बता भी दिया, कई बार ऐसा होता था जैसे से फॉर एग्जांपल आई हैव रिक्वेस्टेड देम फॉर अ पीटीओ फॉर अ सिक लीव, Right. अब उनको तो लग रहा है मैं Okay, सिक लीव पर हूँ, मैं बीमार हूँ, और इधर मैं अपना इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगा रहा हूँ परफॉर्मिंग लाइव इन दिल्ली, परफॉर्मिंग लाइव इन Oh, अलीगढ़। they caught you. हाँ, तो दो मैंने बहुत क्लेवरली लाइक उस टाइम पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जो था वो एक प्राइवेट अकाउंट था, और टू मेक इट श्योर कि गलती से कई बार ऐसा पता होता है नहीं कि हम फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, फॉलो बैक कर लेते हैं, तो आई मेड इट श्योर दैट मेरे जितने भी सीनियर्स हैं मैंने पहले ही उनको स्टेटस प्राइवेसी में जाकर के सबको अपने Hide स्टेटस कर हाइड कर दी, कि इन केस ऐसा ना हो कि भाई ये हो जाए कि यहाँ पे तो इसने सिक लीव डाली है, वहाँ पे परफॉर्मिंग लाइव डाल रहा है, अगले कोई इवेंट में अगर मैं पीटीओ मांगूंगा भी तो ये देंगे नहीं नहीं। देंगे, तो okay, या good. दैट वाज द थिंग। I think being in the job, and this is kind of a, you know, we perform out of fear because of course यार, क्योंकि हमारे सपने भी हैं, फिर जॉब भी है, तो दोनों को बैलेंस करना at the same time, it's an art. आर्ट कह सकते हैं, Right. टैलेंट कह सकते हैं। अच्छा, जब आप जॉब में थे तो कभी आप बुली हुए थे? बुली हुआ तो नहीं, लेकिन करा बहुत है। ओके, हमारे स्पीकर ने बुली करा हुआ है, पॉइंट बुली बहुत किया है, बुली मतलब नॉट इन अ, अब मैं इसको नेगेटिव पॉजिटिव कंटेक्स्ट क्या कहूँ, बुली इज बुली। तो हाँ, मैं बहुत छेड़ता था, Okay. मैं किसी को नहीं छोड़ता था, मैं सबसे मजा लेता था। और रोशन को तो आपने लाइक यूजुअली होता है ना लड़कों में कि वो सारे एक्सटेंड भूल जाते हैं, तो मैं एक बहुत फनी इंसिडेंट बताता हूँ। तो मैं और रोशन बैठे हुए थे, Okay. और हमारी ना जो वर्किंग डेस्क होती थी वो इस टाइप से होती थी कि लाइक जैसे ये डेस्क है, मैं आई एम फेसिंग दिस साइड, तो अपोजिट साइड जो बंदा बैठा है वो दैट पर्सन कैन क्लियरली सी अस। Okay. तो हम कुछ हरकत कर रहे थे और बहुत घटिया हरकत कर रहे थे और वो बार बार हमें देखे जा रही थी, तो इवन दो आई डोंट नो हर नेम, वो देखे जा रही थी। तो रोशन ने बोला मत कर बदतमीजी, वो हम पे पॉश लगा देगी। पहुंच तक बात पहुंच गई। तो मैंने कहा पागल आदमी, छेड़ तेरे को रहा हूँ, पॉश वो क्यों लगाएगी? तो वो बोलते हैं कि वो कह तो सकती है ना कि ये दोनों लड़के बैठ करके ये हरकतें कर रहे थे, एंड लिटरली ही टोल्ड, जो हम कर रहे थे ही स्पोक दैट आउट। आई वाज सो एम्बैरेस्ड। मैंने कहा यार एचआर को जाके बताएगी ये दोनों लड़के अपने साथ ये एक दूसरे के साथ ये कर रहे थे, वो क्या सोचेगी? मैंने कहा अभी तो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी में डाल देंगे, ये चीज है। So I have friends from LGBTQ community. I do support them, so please don't take it in a very offensive way and just kidding. So yeah, बहुत मल्टीपल एक्सपीरियंसेस रहे हैं। बुली तो मैंने बहुत किया है, सबको करा है। Okay. And that was my favorite part, in fact. Oh, but I'm sure you would have not hurt somebody. Yeah, Like, sure. that. My intention was never to outshine anyone. It was just for the sake of fun. Right. कि बस मजे लेने, और Just थोड़ा आई नो द सा- लिमिट्स कि अगर ये इंसान के साथ मैं मजे ले रहा हूँ या कुछ मजाक कर रहा हूँ, वो इतने हद तक झेल पाएगा, तो मैं बस उतने हद तक करूंगा। आई वुड नेवर गो लाइक बिलो द Beyond, बेल्ट। सो right. या ओके, सो वाइल जस्ट जब आप जॉब भी कर रहे थे और अपना ये पैशन भी फॉलो कर रहे थे, तो उस टाइम पे आई एम श्योर बैलेंसिंग बोथ द लाइफ वुड हैड बीन अ चैलेंज फॉर यू। और उस टाइम पे काफी हमने बहुत पेन आपने उस टाइम पे देखा होगा, बहुत स्ट्रगल देखा होगा, राइट? तो वो जो जर्नी, वो जो पॉइंट था आपका कि जॉब भी करना है, इसको भी करना है, फिर उसमें आप अपने पेन और स्ट्रगल्स को हाउ डिड यू मेक दैट एज योर मोटिवेशन? So basically, like when you're working for corporate, so there, like we usually used to say that we have a 9 to 5 job, but in reality, most of them can correlate कि we never have that 9 to 5 job. हम एक्स्ट्रा हमेशा करेंगे ही करेंगे, एंड विदाउट गेटिंग पेड फॉर दैट एक्स्ट्रा आवर्स एज वेल। तो यार द थिंग्स वर चैलेंजिंग फॉर मी ड्यूरिंग द सीजन टाइम, लाइक एज आई टोल्ड यू दैट ऐसा भी टाइम था जब हम 14 घंटे 15 घंटे का स्ट्रेच करते थे, तो वी वर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ आवर लाइक हेल्थ एज वेल, एंड हमें जो भी मिल रहा है हम वो खा रहे हैं। कई बार लाइक वी यूज्ड टू स्किप आवर मील्स एज वेल, क्योंकि लिविंग इन दिल्ली, माय होम टाउन इज अलीगढ़, सो आई एम लिविंग हियर एंड आई एम लिविंग अ बैचलर लाइफ, तो खुद ही बनाना, खुद ही खाना, और फिर इतनी मेहनत करके, मतलब लाइक थ्रू आउट द डे यू आर सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ द सिस्टम। सोचने वाले ये सोचते हैं कि भाई कर क्या रहे हैं, सिस्टम के आगे ही तो बैठे हैं, बट you know mental stress is more like painful in context to a physical stress. तो what I feel is कि like फिर उसके बाद हमारी बॉडी इतनी ड्राउन हो जाती थी कि हमारा मन नहीं करता था कि हम कुछ करें। तो फिर लगता था कि जोमेटो से ऑर्डर कर लो, स्विगी से ऑर्डर कर लो, एंड जोमेटो स्विगी का रिजल्ट आपको देख ही रखा देख ही रहे हैं कितना वेट पुट ऑन कर लिया मैंने। तो यार दिस वाज द थिंग। और अपार्ट फ्रॉम दिस स्लीपलेस नाइट, क्योंकि अभी आपने लॉग ऑफ किया है, इमीडिएटली यू आर जस्ट चेंजिंग योर लाइक वट एवर यू आर वेयरिंग, यू आर वेयरिंग द कॉस्ट्यूम्स फॉर द इवेंट, फिर इमीडिएटली यू आर लीविंग बैक फॉर द वेन्यू, वहां पे परफॉर्म करना। और
आपको तो पता ही है इंडियन कल्चर कोई भी चीज टाइम से शुरू नहीं होती है, Right. तो वी आर गेटिंग द टाइम कि आपको यू आर सपोज्ड टू बी देयर एट 8 एनी हाउ. What was that point in your life जिसने आपको पूरे तरीके से that broken you up and that made you to live this moment up to your expectation from life? तो लेट्स गेट बैक टू 2019. मेरा कभी भी, अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को स्टेज एक्सपोजर का बहुत शौक था. मैं अपने स्कूल में स्टेज परफॉर्मेंसेस वगैरह में बहुत ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व रहता था. बट आई वुड हैव, like if talking in prior context, so I would have never thought of becoming an anchor those days. Okay. क्योंकि मतलब एंकरिंग का देखा था कि मतलब मनीष मल्होत्रा, सॉरी कट कर देना इसको प्लीज. Manish. ठीक है. हाँ. तो मनीष पॉल वाज अमंगस्ट वन ऑफ माय फेवरेट एंकर, जिससे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर होता था. और उस टाइम पे अवार्ड शोज में मनीष पॉल ही आता था. उस time. एंड ही वाज You सो were in फनी. school at that time? हाँ, that time I was in school. Okay. तो यूजुअली अगर आपको पता हो, इफ यू वुड हैव आल्सो एक्सपीरियंस दोस डेज, न्यू ईयर पे हम पूरी फैमिली एक साथ बैठ करके अवार्ड शोज देखते थे. Right. ठीक है. तो उसमें मनीष 90s. पॉल वाज द वन जो पूरी फैमिली को एंटरटेन करता था. एंड ही वाज अ सुपर एनर्जेटिक एंकर आई वुड हैव एवर सीन इन माय लाइफ. दो अब तो जब से मैं एंकरिंग इंडस्ट्री में आया हूँ, मैंने बहुत लोगों से मिला हूँ, बट मेरे को लगता था मनीष पॉल इज मनीष पॉल, देयर इज नो रिप्लेसमेंट. Okay. तो मेरे को बड़ा फैसिनेटिंग लगता था. मैंने कहा यार ये भी सही है, एक बंदा पूरी ऑडियंस को बांध करके बैठा हुआ है और सिर्फ उसी बंदे की बदौलत पूरी ऑडियंस को वो पूरा जो इवेंट है वो बोरिंग नहीं लग रहा है. Right. तो देन आई थॉट ऑफ व्हाई कुडंट मी, लाइक मैं भी तो, भाई मेरी फैमिली मेरी बातों पे बहुत हंसती थी और मेरे को एवरीवन वाज लाइक कि हाँ अगर लवी है महफिल में, तो मतलब मेरे घर का नाम लवी है. Okay. इन प्रोफेशन महफिल बना देते हैं. तो एग्जैक्टली कि अगर कोई भी फैमिली गैदरिंग हो रही हो, तो हमारा परिवार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है. मतलब मैं मैटरनल परिवार की बात कर रहा हूँ, मम्मी की साइड की. Okay. तो हमारे जो मम्मी की साइड की फैमिली है, दैट्स रियली वेरी बिग. तो हमारे जब भी कुछ भी होता था, छोटी सी भी गैदरिंग होती थी, तो 50-60 लोग ऐसे इकट्ठे हो जाते थे. Family function. एंड आई वाज लाइक हाँ, तो ठीक है. तो आई वाज लाइक कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता था, डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, तो एवरीवन वाज गेटिंग एंटरटेन्ड. तो मैंने कहा व्हाई डोंट वी कैन think of making this as a profession, but the family which I come from, उस टाइम पे everyone was like कि नहीं भाई तुमको बिजनेस करना है, तुमको जॉब करनी है, these things are not meant to be. और अभी भी इंडियन फैमिलीज में ये चीजें बहुत ज्यादा विटनेस की जाती हैं कि अगर उनका बच्चा किसी पैशन को फॉलो करना चाहता है, या फिर वो अपनी लाइक इफ यू वांट टू ग्रो वेल इन सिंगिंग या फिर किसी भी इंडस्ट्री में, तो मतलब फैमिली बिजनेस से हटके they are trying them to pull that particular person back. क्योंकि उनको लगता है कि ये इंडस्ट्री शायद आपको रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं दे पाएगी या उतना पैसा नहीं दे पाएगी, या फिर ये इंडस्ट्री है भी ऐसी कि भाई 100 में से एक या दो ही इंसान ऐसे निकलते हैं जो दे आर डूइंग रियली वेल. तो अगर मैं मम्मी पापा के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो उनका अपनी जगह सोचना सही है कि भाई हमको एक सिक्योर्ड लाइफ चाहिए. एंड स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली में तो ये बहुत ज्यादा होता है कि भाई एक बार को पैशन मत फॉलो करो, लेकिन बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए कि इन any of the emergency situation you have the resources available with you. Of course. So as I told you, getting back to 2019, just after completing my schooling, I was in the first year of graduation. My dad met with a very massive cardiac arrest, and that day was like a turning point for me. So उस टाइम पर I'll tell you the story, मेरे और पापा के कई बहुत सारे व्यूज में क्लैशेस रहते हैं कि अगर पापा ने कहा ये, तो फॉर श्योरली मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं उस चीज को इंटेंशनली कर दूं, बट ऐसा होता है. दो मेरे पापा मेरे को बहुत प्यार करते हैं, वो मेरे को, भाई मैं तो ये मानता हूँ कि लड़कों की तरह कम उन्होंने बेटियों की तरह मेरी परवरिश ज्यादा करी है. मतलब इनफैक्ट अभी भी मैं घर पे जाता हूँ तो इज लाइक मैं तेरे लिए ये लिया हूँ, मैं तेरे लिए वो लिया हूँ. मैंने कहा ठीक है, अगर मेरे को कुछ खाना होगा मैं ले आऊंगा जाकर के. तो इज लाइक नहीं तू मार्केट मत जा, मैं तेरे लेके आऊंगा. तो मतलब ही इज वेरी मच, हाँ ही इज वेरी मच. अदरवाइज तो इन आवर सोसाइटी लाइक बॉयज हैज बीन कंसीडर्ड एज के यार इसको भेजो. मतलब तो मेरे पापा इज लाइक 65 और 65 प्लस, और अभी भी ही इज लाइक कि मैं जब दिल्ली से अलीगढ़ जाता हूँ तो ही इज लाइक अरे तेरे को कुछ चाहिए तू बता, मैं लेकर के आऊंगा. मैंने कहा यार पापा लाइक सीरियसली. तो मेरे पापा इज अ वेरी केयरिंग सॉर्ट ऑफ पर्सन. बहुत मेरे को तो बहुत प्यार करते हैं, मेरे को इनफैक्ट मेरी बहनों को बहुत प्यार करते हैं. ही लव्स एवरीवन इन द फैमिली. और उन्होंने जितनी मेहनत की है, आई फील लाइक मैं उनके बराबर मेहनत कभी कर भी नहीं पाऊंगा. तो द थिंग वाज लाइक व्हेन ही गॉट द कार्डियक अरेस्ट, उस टाइम पर मेरा और पापा का बहुत बड़ा वाला एक क्लैश हुआ था
म्यूजिक को लेकर के, क्योंकि उन दिनों मेरे को म्यूजिक का, उन दिनों क्या, मेरे को अभी भी क्लासिकल सिंगिंग का बहुत शौक है, मेरे को बहुत शौक था। तो आई वॉज लाइक कि मेरे को सिंगिंग सीखनी है, बट 12 तक तो मैं सीख ही नहीं सकता था, क्योंकि ये था कि तू बोर्ड सिंगिंग में एग्जाम। जाएगा या फिर तू अपनी पढ़ाई पे फोकस करेगा। मैंने कहा ठीक है फाइन। अब ग्रेजुएशन में आ गए तो अच्छा, आपको पता है कि ये टाइम ऐसा होता है जिसमें हम अपने दिमाग से कम और एक दूसरे फ्रेंड से से इंस्पायर्ड होकर के हम ज्यादा चीजों इन्फ्लुएंस को बहुत हो जाता है उस एग्जैक्टली time पे, हाँ। तो मतलब आई one of my friend, I won't name him in the podcast, so he was willing to do CA that time. Okay. उसका बहुत मन था, and so was mine. मतलब I was like, because I did my schooling in commerce, मतलब 11 12 मेरे पास commerce थी, तो आई वॉज लाइक कि ठीक है भाई, हर किसी का क्रिस्टल क्लियर रहता है कि बीटेक वाला, मतलब बीटेक वाला कह रहा हूँ मैं, पीसीएम वाला आईआईटी करेगा, आईआईटी के प्रेप करेगा। काफी और- मतलब फिक्स्ड स्ट्रीम हाँ, थी उस exactly, टाइम पे ना, हाँ, करियर कि वाइज। अगर कोई पीसीबी ले रहा है तो वो नीट की प्रेपरेशन preparation करेगा, और करेगा। अगर कोई कॉमर्स ले रहा है तो वो सीए की प्रेपरेशन करेगा। राइट। तो दिस वाज द सिनेरियो दोस डेज। तो मेरे फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स, दे वर लाइक कि फिक्स्ड माइंडसेट, जो भाई हमको तो सीए करनी है, जो क्योंकि है वो हम, करेंगे हम। आई वाज लाइक कि भाई, और वो मतलब एज आई मेंशन कि मैं नाम नहीं लूंगा, वो इतने बेवकूफ लोग थे, दे वर लाइक कि मैं सीए करूंगा। मैंने कहा जब ये सीए करने कर की सोच सकते सकता है तो आई एम फार बेटर इन टर्म्स ऑफ स्टडीज इन कंटेक्स्ट टू देम, तो मैं तो इजीली क्रैक कर लूंगा। ओके। देन आई मेंशन दिस थिंग राइट इन फ्रंट ऑफ माय डैड कि मेरे को सीए करनी है। ओह, आउट ऑफ म्यूजिक? नहीं, म्यूजिक तो केम इन दी लेटर ऑन Later फेज। stage, okay. तो पापा ने कहा कि देख सीए के, मतलब पापा ने मेरे को समझाया कि सीए के फॉर्म्स, क्योंकि उन दिनों फाउंडेशन, अभी तो और ज्यादा फी होगी, उन दिनों फाउंडेशन की जो फी थी वो समथिंग 10K अराउंड थी। तो फाउंडेशन की, फिर आईपीसीसी ग्रुप ए, ग्रुप बी, हाँ, like- तो फाउंडेशन की उस टाइम पे 10K अराउंड थी फी। तो पापा ने कहा सी, आई एम नॉट इन अ कंडीशन कि मैं अभी तेरा इतना 10K पर एग्जामिनेशन अफोर्ड कर पाऊं, तो आई विल सजेस्ट यू समथिंग कि यू लुक फॉरवर्ड फॉर सम अदर स्ट्रीम वे यू कैन ग्रो रियली वेल। तो मेरा दिमाग हो गया खराब। अब आई डिडंट try to understand ki why is he saying like this, because there might be some cause. Right. He might not be having financial resources though, those days, so he would have asked me कि ये नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन I would have thought of some better good opportunity for you, I can invest in that. बट उस टाइम तो बच्चों वाली बुद्धि थी, तो हम लड़े झगड़े बहुत ज्यादा कि अब पढ़ाने की, पहले तो पढ़ाई की जिद करते रहते थे, अब अब पढ़ने कर का रहे हैं तो मन पढ़ा है तो अब इन पे सीए नहीं करवाई जा रही। तो मेरा तो बड़ा बेसिक था, वो मैं 12th के बाद ही हुआ था ये। मुझे कुछ भी चीज मनवानी होती है घर में, तो वो बहन, द सोर्स ऑफ sister. कॉन्टेक्ट इज नहीं, ओके। सिस्टर तो बाद में आती है, सबसे पहले मम्मा। मम्मा। आई एम वेरी क्लोज टू माई मम्मा। ओके। मतलब कुछ भी होता है तो मम्मा। तो मम्मा, और पूरे मेरी she मेरी is the protector. हाँ एग्जैक्टली, और मेरी पूरी फैमिली में ये भी है कि अपनी मम्मी को चला लेता है अच्छा। और उनसे चलवा करके ये सारे काम करवा वो लेता है। लेता तो और मम्मा मेरे को कई बार पोक आउट भी करती हैं इसी चीज से कि सबको लगता है कि ये मम्मा की अपनी सारी बात biased सुनता होते है, हैं, okay, नहीं ये अपनी अच्छा। मम्मा की सारी बात सुनता है, लेकिन तू मेरी कुछ नहीं सुनता। अच्छा यूज मैंने कहा क्या नहीं सुनता, मैं आपकी सब बात सुनता हूँ। उन्होंने कहा करनी तेरे को वही होती है जो बीच तेरे में। मन की होती है, बस वो तू मेरे को बीच में लाके- लाके खड़ा कर देता है। So if I talk about like the life which you are living currently, and just to let the audience know, he is owning his event management company, Sri Shyam Sri Shyam Event Designs. Event design, sorry. No worries. And then he does anchoring, and he does sort of, you know, kind of all related event which he feels Guest like management, doing. decoration, guys. I'll Okay. let you know about my company. Yes, please. A promotion. Huh? So we have categorized our event management. Means we have the 4 sections which we are taking care of. The first one is the devotional events. I'll say the initiation of mine. So that is the prime most section of our event management company, where we are taking care of all these bhajan sandhyas, chowkis, jagrata arrangements. Then we have the second section of wedding planning, where we are arranging every stuff, whether it's decoration, the guest management, the stage management, everything. Like we are providing you the one-stop solution for all your events requirement. Then third is the corporate events, where we are serving for the corporate officers for the award shows, the retirement ceremonies, the product recognition, and there are several more other categories which we are working for. And the fourth one is decoration thing for the birthday parties, kitties, and the small housewarming parties and all these events. So yeah. So how can they reach out to you?
I'll drop my contact details along with my Instagram handle below the video, so you can just reach out right there by, and you can just connect with me, and will always be eagerly waiting for assisting all of you. So I'm just a call away for all your Or requirements. you can just let them know your Insta handle. Like Sure. So it's they- Tapish_single, and I'll drop all the details below. In the- So yeah. Yes. Okay. So I know you are into diversify, field. Of course, event में भी हमारे काफी तरीके के events होते हैं, different set of audience, है ना, different kind of expectation you will have to fulfill, right? तो इन सब के बीच में अगर मैं आपसे बात करूं, the life which you are living today, उसमें जो अगर देखा जाए तो how would you define कि you are living a purposeful life? So I'll say कि पहली thing, I am able to achieve all those things which I would have dreamed for in the Wow. past days. Okay. The first thing, having a Oh. iOS. This is kind of a Yeah. like For like, especially for me, like the family which I come from, in the past days, there were few, or rather, I'll say कि there were only 1 or 2% those who were having this Apple phone, and we were like, oh, Apple phone. और आजकल तो सब एक दूसरे से influenced है, और बहुत common हो गया है अब तो खैर ये चीज, but हाँ, बट फिर भी आपको काफी हद तक अपने ड्रीम्स को मारना नहीं होता, Exactly, अपनी डिजायर्स को आप को मारना पहले जो नहीं चीजों होता। को करने के लिए बहुत सोचना पड़ता था, अब सोचना नहीं पड़ता। अब इट्स जस्ट लाइक कि निकालो क्रेडिट कार्ड, गए, खरीद लाए। Right. Okay. So I could totally relate that, And with same you, thing I कि- just want to do for my parents, for my sisters, for my जीजू. In fact, like last Diwali की ही बात है, हाँ, तो I gifted my mother a gold ring. Okay. तो आई वाज लाइक, nice. और इसके भी एक स्टोरी है कि ड्यूरिंग माय एमबीए, मतलब वी वर लाइक गोइंग थ्रू द फाइनेंशियल क्राइसिस, तो उन्होंने मेरे को बिना बताए अपनी गोल्ड की रिंग बेच दी थी, Oh. बिकॉज मेरे को पैसों की जरूरत थी। और जब मेरे को ये बाद में पता लगा, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, Your कि दैट father वाज didn't know द about it. नो, अब सबको पता लग जाएगा। तो हाँ, तो जब मेरे को 2 महीने बाद पता लगा, तो आई वाज लाइक कि मतलब मैंने अपनी माँ को तो आज तक कुछ दिया नहीं है, बल्कि उनसे ले और लिया सब कुछ। तो मेरा ये लाइफ का एक ड्रीम था कि भाई मेरे को एटलीस्ट कुछ नहीं तो वो गिफ्ट करना है। एक गोल्ड रिंग जो मम्मी ने मेरी वजह से गवाई, उनको एक वापस करनी है, और राधा रानी की कृपा से मैंने वो होपफुली उनको गिफ्ट की। तो या, और अभी तो बहुत कुछ है प्लान, बट आई वोंट मेंशन दिस। Hope aunty you would like the ring, your son gifted you. So पहले तो बहुत डांट पड़ी, तू पागल है क्या करता है, अरे मम्मा का हर बार ही है। एंड देन व्हेन आई जस्ट वेंट फ्रॉम द रूम, मैंने कहा यार ये तो यही करती रहेंगी। देन आई सॉ हर लाइक आई पीप्ड आउट राइट फ्रॉम द विंडो, एंड शी वाज लिटरली किसिंग दैट रिंग। मैंने कहा यार इतना सुनाने के बाद मेरे सामने ही कर देती, कुछ तो होता। मैं थोड़ा होता है ना ममाज हाँ, का, दे बहुत वोंट ज्यादा। लाइक, हाँ, उनको थोड़ा जैसे मामा और पापा को है कि सामने आपको शो नहीं करेंगे, मतलब दे डोंट नो द आर्ट ऑफ एक्सप्रेस, एक्सप्रेस नहीं करते हैं वो लोग। उस दिन मेरे को वो मीम याद आया था कि कर्म करने चलो और कांड हो जाता है। That goes really well to our generation actually. Okay, so today from your story, I would like to pick that point कि that can be a big share for our audience कि your silent battles which you were silently fighting, उसमें से अगर आप कुछ एक ऐसा मोमेंट शेयर करेंगे जो बैटल आप खुद से लड़ रहे थे, जिसमें लोगों को नहीं पता था, बट दोज वर योर बैटल्स एंड यू वर जस्ट फाइटिंग विद देम साइलेंटली डिस्पाइट नोबडी नोज, व्हाइल जस्ट, अगर हम देखें तो सामने से बंदा मिलता है, हमें लगता है कितना अच्छा है, हाय हेलो स्माइलिंग फेस, बट अंदर ही अंदर उसके बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत कुछ वो फेस कर रहा होता है, चैलेंजेस एंड स्ट्रगल्स। तो ऐसा कोई मोमेंट रहा है लाइफ में कि आपने, एक होता है ना हमारा एक सीक्रेट कि हम नहीं शेयर कर पाते किसी से, इतना दुख कौन सुनेगा मेरा, इतना स्ट्रगल, ओ नहीं सॉरी मैं नहीं बता सकता किसी को। तो आई वुड लाइक यू टू टच अपॉन दैट दोज मोमेंट्स के नोबडी नोज एक्चुअली, आई वांट यू टू शेयर दैट ऑन कैमरा। सो इसीलिए
कि ये if this can reach to one person and if this can influence even a single life, then this show will be worth recording. श्योर बट जैसा कि आपने बोला सीक्रेट, Yeah. तो है मेरी लाइफ के कुछ सीक्रेट्स, और फॉर श्योरली मैं पॉडकास्ट में तो रिवील नहीं करूंगा, और पॉडकास्ट के मैं किसी अपनी आम Like your- जिंदगी में भी किसी से your नहीं, own battles which you were fighting, yeah. बट अगर मैं बैटल्स की बात करूं तो भाई लड़ाइयां तो बहुत लड़ी है। अगर मैं आज यहाँ पर बैठा हुआ हूँ तो बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ आई हैव वेंट थ्रू, जिसकी वजह से यू हैव इनवाइटेड मी ऑन योर शो, बिकॉज Right. फॉर श्योरली द शो इज नॉट फॉर द like That- person who is doing nothing in his life. Right. So even though I have seen your other episodes as well, so I was quite inspired with the speakers, those who were there as a guest. तो हाँ, बहुत सारी बैटल लड़ी है मैंने, और कई सारे डिसीजंस में मैं अपने घर वालों के अगेंस्ट भी गया हूँ कई बार, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, बट आई विल से कि मेहनत कभी करनी नहीं छोड़नी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपकी लाइफ में ड्रीम नहीं है, अगर आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं है, तो आई डोंट फील सो कि आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे, बिकॉज इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू हैव अ गोल। मैंने भी अपनी जर्नी ये सोच करके शुरू करी थी कि मेरे को बस पैसा कमाना है। पैसा कैसे कमाना है इसके बारे में मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह अपने आप मिल जाती है। तो द थिंग इज दिस। और रही बात बैटल की, तो मेरे को, जैसा आपने पूछा था कि आप कभी बुली हुए हो, तो मैं कॉर्पोरेट में तो नहीं, बट मैं स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में बहुत गंदा वाला बुली हुआ, बहुत गंदा वाला बुली हुआ। Okay. और मेरे को बहुत चीज़ों के ताने मिलते थे, सब चीज़ों को मैं चुपचाप बस सहन कर लेता था। उस टाइम पे द थिंग वाज लाइक कि मतलब मैं इतना ज़्यादा ओवर पैम्पर्ड बच्चा था घर का कि मैं अपने घर पे भी डिस्क्लोज नहीं करता था। तो मेरे को लगता था कि अभी मैं इनको किस मुंह से बताऊंगा, या लाइक वाइज। तो आई यूज टू कीप ऑल दीज थिंग्स विद इन मी, और शायद ये आर्ट मैंने बचपन में ही सीख लिया, अपने सीक्रेट्स को छुपा करके रखना, किसी से नहीं बोलना। तो सॉरी फॉर द शो, बट हाँ, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई कांट डिस्क्लोज इन made द you, yeah. पॉडकास्ट, बट हाँ, those were like I'll say कि वो ऐसे लम्हे हैं और वो ऐसे मोमेंट्स हैं जिन्होंने मेरे को आज इस तपिश सिग्नल को बनाया है जो आप सभी के सामने बैठा हुआ है। Those were your kind of वो जो चोट मारते हैं ना हाँ, डायमंड, exactly. डायमंड को शेप करने के लिए जो जितने भी हैं, तो और मैं आज जो भी हूँ उसमें मेरी माँ का सबसे बड़ा रोल है, और I was about to ask हाँ, you, yeah, who is सबसे बड़ा रोल मेरी माँ का है, Okay. उसके बाद मेरी बहनों का है, ऑफ कोर्स माय डैड, एवरीवन। बट अगर मेरे से पूछा जाए कि हु इज द पर्सन, मतलब whom you gonna be giving 80% of credit, so that is my mother. Oh, how sweet. हाँ, देन मैं जिस तरीके की पर्सनालिटी हूँ, मेरी जिंदगी में बहुत ही कम लोग हैं, बट जितने भी लोग हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब करीब हैं। हैं। तो ऑफ कोर्स मामा आई लव यू, दीदियों आई लव यू, जीजू आई लव यू टू। जीजू कहेंगे कि हमें लास्ट में कवर अप करना। Yeah, you can share your हाँ, love to exactly. your family. So And one of my friend Atul, who is and who was always there for me in my bad times, Oh. my good times. it's I met him in MBA only. okay. And होते ना कुछ लोग जब अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में आते हैं और आपकी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं, यू कैन इमेजिन योर लाइफ विदाउट देम। तो अतुल इज अमंग्स दोज। And those are the Or- ones, like, a soul that comes on your way just to make you reach the destination. Exactly. So that's how they work. He has always supported me. दो पूरे पॉडकास्ट में मैंने उनका जिक्र कहीं नहीं किया, but he is a very special person. I just want to keep the movement between me and Atul with me myself only. Like I don't want to disclose it with everyone, क्योंकि सबको पता होना चाहिए, लेकिन सब कुछ पता होना चाहिए, that ये is भी not जरूरी important नहीं है। enough. So big hearts to Mama and Atul Right. and my sisters. Good. So now we have come to the end of our show, where we will talk about some fun fact. Sure. जहाँ पर you will have to give a name to this cup, right? And what name would you give to this cup, considering your life story and one title of your story? What would you like to give to this cup? One title. So yeah,
I'll say Zindagi Na Milegi Dobara. Oh, cheers. Sorry, I missed that. It's okay. Zindagi Na Milegi Dobara. And cheers to Megha as well. Thank you so much for inviting for your show. Of course. And it was really a lovely experience coming to your show. And I hope that we're going to be meeting in future once again. Definitely. Not once again, multiple times I'll say rather. Like as soon as I Fingers crossed. keep achieving my milestone. Yes, I'll- we'll keep calling you on the show. Exactly. And yes, as this show also grows, Yeah, sure. of course. So, And guys, please don't forget to follow Megha Sharma. She is doing really well, and I just want to follow her on the Instagram handle as well as on the YouTube. If you want to get inspired and real life facts, because I personally enjoy and watching all her episodes Okay. and the content which she is creating for all of us. She makes sure that all of us are supposed to be kept motivated, and at least we should be feeling energetic so that we can achieve all those things which we want in our life. So yeah, cheers to Megha. thank you so much. Thank you, Tapesh. Sorry, I'm Thank you again so drinking coffee. Enjoy. So yes, guys. So we enjoyed Tapesh's story, and we got to know about his struggle, his kind of, and being the youngest one, and ever, like he's been my one of the youngest guest speaker, and he's really doing well, and it's really an honor to meet such souls who really identify their talent at an early age, because it took me also a time, right? I'm in my 30s and I have no shame in sharing that. So it really takes time for the people to identify their talent and what purpose they want to serve in life, and he's really doing good, and he is an inspiration for all of us. So please do watch out this episode, and if you could take just one piece of advice, I would really feel that it is worth recording this episode. It's worth recording this episode. And since we are at Cup and Conversation, where every cup has a story, and today's story was Tapesh, and his title of the story is Zindagi Na Zindagi Milegi Na Milegi Dobara. So keep watching, stay tuned, please shower all your love, do Thank you so share. much, everyone, and please don't forget to follow us on our Instagram handle. Yes, of course. So I will leave, you can get in touch with Tapesh. I will leave all the details in the description. So please plan all your events while having Tapesh on his, on duty. So he's just there for you to serve. Anytime, I'm just a call away.